Assalamu alaikum student. Today our topic is algorithm. In the previous videos we have seen the problem solving methods, problem solution, analysis of problem. We have solved the example number 1. Now we are moving towards the algorithm and we will solve the exercise question and book example relevant to the algorithm. Page 11. What is an algorithm? An algorithm is the step by step procedure to solve a problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, प्रोसीजर्स कि इसकी इनपुट ऐसे आएगी, इसकी आउट प्रोसेसिंग ऐसे होगी और इस प्रोग्राम की जो है आउटपुट ऐसे आएगी, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है. बेसिकली इट इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश वर्ड. The main thing is we have to focus the sequence of the programs. That first we start, then input of the program, then processing, then output of the programs. So what is an algorithm? Algorithm is a step-by-step problem solving procedure or method that is easy to understand and follow. What are the role of an algorithm in problem solving? There are basically four. First, it is a set of steps that clearly defines a sequence of operation to solve a problem. Second thing is programmer find it easy to convert algorithm into coding. कि प्रोग्रामर एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट कर सकता है. That is in the next point we see that an algorithm can be converted into any programming language, that is C++, Dev, C, Java. अब इस 10th क्लास की बुक में हम क्या करेंगे कि जितनी भी हम एल्गोरिथम पहले लिखेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेव सी लैंग्वेज में, जो कि 10th क्लास की पार्ट ऑफ दी और से. एंड सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं कि इसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं C++ और टर्बो सी लैंग्वेज में. बट इन 10th क्लास in this session we will write the algorithm of different problems questions, and then we will draw its flowchart, and then we will convert these algorithm into dev C language. Point number 4, there may be several algorithms for solving a particular problem. Therefore we have to select efficient algorithm that can resolve problem quickly with minimum resources. एक प्रॉब्लम्स को पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए उसके कई एल्गोरिदम लिखे जा सकते हैं, but we have to select well algorithm based on the efficiency of the algorithm. Okay, how we can convert this algorithm into the proper programming coding. Basically this work is done by the programmer. Okay, now I will also tell you what is flowchart. Okay, when we write the algorithm of a problem or a program, then we have to draw its relevant flowchart. Flowchart is basically the pictorial diagram, pictorial representation of an algorithm. कि एल्गोरिथम को आप पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं पेपर के ऊपर, तो वो फ्लो चार्ट लाता है. फ्लो चार्ट, उसमें फ्लो चार्ट की सिंबल है. वी विल सी डैट स्टार्ट, एक स्टार्ट सिंबल उसका है. इसी तरह उसमें इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल्स हैं. उसमें पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए. रेक्टेंगल यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए. इसी तरह स्टार्ट और एंड के लिए टर्मिनेटर यूज होते हैं, ओवल शेप यूज होते हैं. तो now we will see the example and we will write its algorithm and we will draw its relevant flowchart. Now let's see. Question है, write an algorithm and draw its flowchart. The question is, it is the problem number 1. Find the sum, product and average of 5 given numbers. हमने sum, product और average find करना है 5 given numbers का. अब basically this is very simple program. ठीक है, these program are simpler, but no, when we will move forward then these program will be complicated. आगे जैसे जैसे हम मजीद प्रोग्राम करते जाएंगे तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आएंगे. बट इट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ बेसिक स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड each स्टेप. सो लेट्स सी फर्स्ट एल्गोरिथम. अब देखें कि अब ये प्रॉब्लम मेंशन है, फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. अब इसमें इनपुट क्या है, 5 गिवन नंबर. जो 5 गिवन नंबर से उसकी इनपुट आ जाएगी. ठीक है, रिक्वायर्ड आउटपुट जो आपको चाहिए, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज.
और प्रोसेसिंग इसमें क्या है, एडिशन भी, नंबर एक एडिशन प्रोसेसिंग है, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन प्रोसेसिंग है, नंबर 3 इसमें डिवीजन प्रोसेसिंग है। फर्स्ट आप सिर्फ देखें एल्गोरिथम की तरफ। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 1 में स्टार्ट, ये आपने जब भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो आपका स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड, लेट द 5 नंबर्स बी। आपने कोई भी नंबर सपोज कर लिए, ये आपकी सपोजिशन है। फॉर एग्जांपल a is equal to 2, b is equal to 5, c 8, d 4, e 12, ये आपने कोई भी इसमें डाटा दे दिया, ठीक है। अब आपने इसमें a b c d और e आपने वेरिएबल ले लिए और उसको आपने डाटा दे दिया। स्टेप 2, फाइंड द सम। अब देखिए ये सम का फार्मूला है, ठीक है। सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। फर्स्ट ये इनपुट आ रही है, सेकंड प्रोसेसिंग है, थर्ड अगेन प्रोसेसिंग है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c d मल्टीप्लाई e। स्टेप 4, फाइंड द एवरेज, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, सो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। और स्टेप 5, आउटपुट सम। अब ये तीनों वेरिएबल जो हैं ये इसके आउटपुट में सम आ जाएंगे। और एट द एंड स्टेप 6 स्टॉप, ठीक है। अब इस ये जो एल्गोरिथम लिखा है हमने एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लो चार्ट में, और इन दी नेक्स्ट चैप्टर वी विल कन्वर्ट इट इनटू दी डेप्थ सी सिंटैक्स लैंग्वेज, कि हम इसी एल्गोरिथम को डेप्थ सी के प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नो लेट्स सी इट्स फ्लो चार्ट। अब देखें फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो ओवल सिंबल है ये शो करता है, ओवल शेप सिंबल शो करता है इसके स्टार्ट को भी और इसके स्टॉप को भी। उसके बाद इनपुट ए बी सी डी, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम वो होते हैं जिसकी आमने सामने की साइड जो है वो इक्वल होती हैं। देखें अब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम यूज हो रहा है इनपुट पर्पस के लिए, इसी तरह आउटपुट पर्पस के लिए भी हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये लाइन शो कर रही है फ्लो ऑफ डाटा, एरो मूविंग डाउनवर्ड, फ्लो ऑफ डाटा कि फ्लो ऑफ डाटा इस तरफ है, पहले स्टार्ट, उसके बाद इनपुट ए बी सी डी। अब 1 2 3 4 5 इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स 2 भी हो सकती, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद आ जाए, दिस इज रेक्टेंगल सिंबल। अब जितनी भी प्रोसेसिंग है इस रेक्टेंगल सिंबल के अंदर होती है। ये जितने भी फार्मूलाज आप अप्लाई करते हैं वो इस रेक्टेंगल सिंबल के अंदर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सम का फार्मूला इसमें प्रोडक्ट का है, एवरेज का है, इसी तरह क्वाड्रेटिक का फार्मूला है, टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला है। जितने भी आप फार्मूला अप्लाई करते हैं वो फ्लो चार्ट में आप उसको रेक्टेंगल सिंबल के अंदर शो करते हैं, यानी रेक्टेंगल सिंबल शो करता है दिस इज द प्रोसेसिंग, ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। और ये अगेन पैरेललोग्राम ये शो कर रहा है आउटपुट को भी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that parallelograms are used for both input and both output purpose, or at the end this shows the stop of the flow chart. रिमेंबर कि आपने इसका एक सीक्वेंस फॉलो करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनपुट ही मत दें और पहले प्रोसेसिंग कर ले। फर्स्ट स्टार्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, देन स्टॉप। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल convert these algorithm into flowchart and into depth C programming language. Okay, clear? Any difficulties regarding today lecture, you can ask me in comments or through WhatsApp messenger. Okay. Problem number 2, page 12, problem number 2. Find the largest of 3 unequal numbers. Now we have to write the algorithm of this problem and we will also draw the flowchart of this problem. Problem 2, find the largest of 3 unequal number. 3 unequal number है, उसमें से हमने largest find करना है. Now planning the solution, input 3 unequal numbers. 3 unequal numbers are given. Required output, the largest of 3 numbers. And processing is comparison of each number with the other to one by one. We have to compare 3 numbers one by one with each other. Now start the algorithm. Step 1 start. हमेशा step 1 start से start करेंगे. Let the 3 numbers be A, B, C. A, B, C, any 3 numbers be A, B, C, any 3 variables
we assign three different values. Let's suppose a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30. Step 2. Now we will check one by one. If a is the largest, check if a is the largest. We have to check if a is largest. To check is, here I have encircled the condition. If a is greater than b and a is greater than c, अगर a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, then largest is equal to a. जो a की वैल्यू वो largest को assign कर दे. In depth C, this is assignment operator. It will assign the value of a to the variable largest. a की वैल्यू largest में जाके स्टोर हो जाएगी. और अगर ये कंडीशन 2 नहीं है, अदरवाइज गो टू स्टेप 4, तो स्टेप 4 में चला जाए. यानी अगर a b और c से बड़ा नहीं है तो स्टेप 4 में जाएगा और वो दोबारा चेक करेगा क्या b बड़ा है, क्या b a और c से बड़ा है. ठीक है. और अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, विच इज स्टेप 3, दैट इज गो टू स्टेप 7. कि यहाँ से अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे स्टेप 7 पर आ जाएगा और स्टेप 7 से जो है ये प्रोग्राम जो है ये आउटपुट लार्जेस्ट नंबर प्रिंट होगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर a b और c से लार्जेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, गो टू स्टेप 4. स्टेप 4 के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा. चेक इफ b इज द लार्जेस्ट नंबर. अब यहाँ पे चेक होगा क्या b लार्जेस्ट नंबर है, इफ b इज द लार्जेस्ट नंबर. अब अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c. दीज टू आर कंपेरिजन ऑपरेटर. ठीक है. ग्रेटर देन साइन हो या लेस देन साइन हो, दीज टू आर नोन एज कंपेरिजन ऑपरेटर. ये कंपेरिजन है, ये कंपेरिजन कहते हैं दोनों वैल्यूज को, दीज टू. अगर b a से भी ग्रेटर है, c से भी ग्रेटर है, देन लार्जेस्ट इज टू b, तो b की वैल्यू लार्जेस्ट वेरिएबल को साइन कर दे. और अगर ये कंडीशन 2 है तो गो टू स्टेप 7 पर आ जाए और आउटपुट लार्जेस्ट वैल्यू जो भी वो प्रिंट कर दे. और इफ कंडीशन इज फॉल्स तो अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, गो टू स्टेप 6. अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर ट्रू है तो स्टेप 7 की तरफ जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स है देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू c. तो अब c की जो वैल्यू, अब देखें a और b दोनों वैल्यू कंपैरिजन होगी. अगर दोनों वैल्यू लार्जेस्ट नहीं है और कंडीशन फॉल्स है तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट को साइन हो जाएगी और आउटपुट लार्जेस्ट, और ये जो लार्जेस्ट वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी. तो बेसिकली दिस एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑपरेटर. और ये जो दो आपको रेड सर्कल में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. एक वेरिएबल को दो डिफरेंट वेरिएबल से कंपेयर किया जा रहा है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल जो है उसको असाइन की जा रही है. यहाँ भी अगर ये लार्जेस्ट वैल्यू है तो एक वैल्यू असाइन हो जाए, अगर लार्जेस्ट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप 4 तरफ चला जाए. इसी तरह अगर b लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट वेरिएबल को साइन हो जाए. और इसी तरह अगर a और b दोनों नहीं है, c लार्जेस्ट है तो c लार्जेस्ट को साइन हो जाए और एट दिन लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए. Now we will draw the flow chart of this algorithm. Flow chart is the pictorial or diagrammatic representation of an algorithm. किसी भी algorithm को जब pictorial form में, pictures की form में आप represent करते हैं तो वो flow chart कहता है. And this is a very important question. इसका flow chart number 2 and page number 21. Now we will draw the flow chart of this algorithm. Okay, now we have to draw the flow chart to find the largest of three unequal numbers. This is page 21 and flow chart number 2 on the textbook, and this is very important according to the board point of view. First देखें कि flow chart to find the largest of three unequal numbers, इसका भी हमने algorithm देखा है. अब हम इसका flow chart बनाने जा रहे हैं. This is the start symbol and this is oval shape जो स्टार्ट को शो करता है. इनपुट के लिए मैंने आपको पहले बताया कि पैरेललोग्राम होगा कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं a b c. वी कैन टेक एनी वेरिएबल a b c x y z, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. और क्योंकि ये इनपुट है, ये पैरेललोग्राम में, दिस सिंबल इज डायमंड साइन एंड इट इज यूज फॉर, दिस इज डायमंड साइन एंड इट इज यूज फॉर डिसीजन पर्पस इन फ्लो चार्ट. जब भी डिसीजन, जहां पे ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जब भी डिसीजन की जरूरत होगी तो हम डायमंड साइन यूज करेंगे. a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c का ये कंडीशन ट्रू है कि a जो वैल्यू जो भी प्रोग्राम में जो यूजर इनपुट करेगा वो b और c से ग्रेटर है. अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस है,
तो आउटपुट ए, तो ए लार्जेस्ट वैल्यू है और उसके बाद ये कनेक्टर सिंबल है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, यानी आउटपुट ए ये प्रिंट हो जाएगा। ये फ्लो लाइन दिस, ये फ्लो जो एरो शो कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, आउटपुट ए, उसके बाद ये कनेक्टर सिंबल है, एंड देन प्रोग्राम विल स्टॉप। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर ए बी और सी दोनों से ग्रेटर नहीं है, ए बी से या सी से या एक से ग्रेटर है दूसरे से ग्रेटर नहीं है, नो, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, नो मीन कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन अगेन डिसीजन, अगेन डायमंड साइन जो और अगेन डिसीजन हो रहा है, अगेन डायमंड साइन यूज हो रहा है। क्या बी ग्रेटर है ए से और बी ग्रेटर है सी से, क्या बी की जो वैल्यू, अगर ए की ग्रेटर नहीं तो हम बी को चेक करते हैं, क्या बी की वैल्यू ए से और सी से ग्रेटर है। अब यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, ग्रेटर देन, ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू है, अब ये क्वेश्चन मार्क है, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर बी दोनों से ग्रेटर है तो आउटपुट बी, क्योंकि बी लार्जेस्ट है, उसके बाद कनेक्टर, उसके बाद देखें ये फ्लो ऑफ डेटा, ये एरो को शो कर रहा है, उसके बाद कनेक्टर सिंबल, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो रहा है। अगर ऐसा ये कंडीशन भी फॉल्स है, अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आउटपुट बी, अब ये कंडीशन फॉल्स है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो अब ए बी सी थ्री वेरिएबल्स थे, बेसिकली थ्री वेरिएबल्स थे, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तीनों में, दोनों में, इसका मतलब ए भी ग्रेटर नहीं, बी ग्रेटर नहीं, इसका मतलब सी ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट सी, अब यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउटपुट सी जो है वो, क्योंकि ए भी ग्रेटर नहीं बी भी नहीं है, इसका मतलब सी जो है ए और बी दोनों से ग्रेटर है, आउटपुट सी, अब सी की वैल्यू आउटपुट एज आउटपुट प्रिंट हो जाएगी, और सी यहाँ कनेक्टर सिंबल, उसके बाद सी जो है वो स्टॉप, यानी जब सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उसके बाद प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट according to the paper point of view. First you have write to the algorithm of the problem, कि आपने प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखना है, उसमें स्टार्ट, इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी डिसीजन सिंबल, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड आउटपुट, देन यू हैव ड्रा दी फ्लो चार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। अभी उस प्रॉब्लम का आपने जो एल्गोरिथम का आपने फ्लो चार्ट बनाना है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट, एंड इन दिस एग्जांपल वी हैव यूज्ड oval shape for start, parallelogram for input and output, diamond signs for decision purpose, character sign, and again oval shape for the end of the program or to stop the program. Any questions regarding this topic you can ask me. इससे relevant further examples हम करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे, और जो बुक में एक्सरसाइज के मेंशंस हैं, बेसिकली तमाम क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो सेम है, कि इसी तरह प्रॉब्लम मेंशन होगी, आपने उसका फ्लो चार्ट लिखना होगा, और उसका आपने उसका एल्गोरिथम लिखना होगा, और उसी एल्गोरिथम को देखते हुए आपने उसी एल्गोरिथम के सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है उसके फ्लो चार्ट में, एंड दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी विल सी further programs in the next coming videos. So any question regarding this video, this session can be asked directly to me through comments or by using WhatsApp. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.